Hello, FutureMakers. Welcome to TeacherPreneur. Today, on the 26th of September, when I'm shooting this video, I turn 30. I really want to thank you all for the wishes, comments, and so many messages that you all have sent me. So, I thought, why not make a birthday special? This year, I'm officially entering my 30s, and my 20s has taught me a lot of things. So, in today's video, I'll be sharing 30 things that I learned on turning 30. Let me tell you that all of these lessons have framed me as a personality and have really helped me grow in my life. So I wish that through this video, you'll get to see a bit of my personal side, and please make sure that you comment down which is the lesson that you relate to the most. I'll be waiting to read all of your comments. With that said, let's get started. The first lesson that I've learned is that God's plans are always better than yours. The second lesson is that change is inevitable. You cannot avoid change. You have to accept it and embrace it. The third lesson is to work on your health. The best day to start working on your body and your own physical health was yesterday, and the next best day is today. Start working out and respect your body. Fourth lesson that I've learned is that never say never. You never know what opportunity will knock your door and what will work out in the long run. So never say never, just keep going with the flow. The fifth thing that I have learned is to be independent. Your independence is the utmost priority that you should set for yourself, because if you are independent, there are many decisions that you can take on your own, and that will start shaping your life the way you want, and you don't have to be dependent on anybody else and their voices and opinions. My lesson number 6 will be to follow your passion. Do what you love. If you love what you do, half of your problems will vanish away, because जो भी आपको काम करना पड़ेगा ना, उसमें आपको अंदर से खुशी मिलेगी, and that is your calling, and just follow that calling. Number 7, success is hard work plus smart work plus luck. हार्ड वर्क मेरे हाथ में है, स्मार्ट वर्क मैं एक्सपीरियंस के साथ सीखूंगी, और लक उसके हाथ में है. सो व्हाट आई डू इज आई गिव माय बेस्ट इन व्हाटएवर आई डू एंड लीव द रेस्ट टू गॉड. I know He will get it done. My eighth lesson is self-care is important, and you have to learn to take care of your own self, because if you don't, nobody else will. My ninth lesson is that your family gives you a lot of complete feeling. Never ignore your family, never take them for granted. I know it will be very difficult to always go with the flow, but these will be people who will stand by your side in your highs and specifically in your lows. The 10th lesson is something that I've learned the hard way, and it is that whatever your parents have said or predicted is right. No matter how much you think मम्मी कुछ भी बोलती है, जमाना बदल गया है, पापा समझते ही नहीं है, बट वही चीजें आपको कहीं ना कहीं लाइफ में फेस करनी पड़ती है, और तब ऐसा लगता है कि तब मॉम डैड की सुन ली होती तो आज कितना अच्छा हो. My 11th life lesson is that one decision can completely change your life. यू नो वॉट, इन माई अर्ली 20s मैं CA बनने चली थी, फिर मैं टीचर बनी, फिर मैं टीचर ट्रेनर बनी, फिर मैं यूट्यूबर बनी, उसके बाद मैं स्मॉल बिजनेस ओनर बनी, और उसके बाद नाउ आई एम एन ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर एंड पॉडकास्टर वेरी सून एज वेल. तो लाइफ में ना एवरी स्टेप will demand a new you. My 12th life lesson is that you have to learn to be presentable. Presentation matters. What I mean is you need to figure out your personality, what kind of clothes you like, what kind of colors suit on you, आपको आपके बाल कैसे पसंद है, your basic makeup and how you can present yourself. Does not mean आपको मेकअप का एडवांस कोर्स करना है या कपड़े कैसे पहनने वो ढंग सीखने जाना है, बट ग्रेजुअली फिगर आउट कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका फेस शेप क्या है, आप पे क्या सूट करता है, और आप क्या पहन के अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो. एंड दैट माय फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. माय 13th लाइफ लेसन इज दैट you need to learn to enjoy your own company. अगर आप अपने आप से बात करने में खुश हैं, अगर आपकी बातें जो आपके साथ है वो पॉजिटिव है ना, that will determine your relationship with everybody else in the world.
अपना ध्यान रखना सीखिए और अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस कराइए। माई 14th लाइफ लेसन इज टू लर्न टू मैनेज योर ओन इमोशंस। लाइफ में किसी भी जगह पे यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर ओन इमोशंस। अगर मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे क्या पसंद है, अगर मैं सैड होती हूँ तो मुझे क्या करना पसंद है। यू हैव टू फिगर दैट आउट फॉर योर ओन सेल्फ। आपको किस चीज से खुशी मिलती है और क्या करने से आपका दिमाग शांत रहता है, वो चीज को आपको कैसे भी करके फिगर आउट करनी है और उसको डेली करना है, ताकि आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को वो पीस मिले जो आपको चाहिए। द नेक्स्ट लाइफ लेसन इज दैट द स्मॉलर द सर्कल द बेटर इट इज। ज्यादा फ्रेंड्स, जितने ज्यादा फ्रेंड्स उतनी मैं पॉपुलर, ये सब मुझे कॉलेज के दिनों में पसंद था, व्हेन आई वाज लाइक इन माय बीकॉम ईयर्स और कॉमर्स ईयर्स। बट ग्रेजुअली मुझे 20s में पता चला है कि द स्मॉलर द सर्कल द बेटर द क्वालिटी, एंड हैव दोज फ्रेंड्स यू कैन एक्चुअली काउंट एज फैमिली। और अगर वो बॉन्ड एक के साथ बन गया ना, फिर बाकी सारे फेक लगते हैं। द 16th लाइफ लेसन, मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है, बट मैंने सीखा है दैट यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव पीपल, not because of any other reason, but for your own mental peace. You have to learn to let go and forgive them, क्योंकि उनकी बातों से आपको फर्क पड़ रहा है बट आपकी लाइफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। They are like that, so let us forgive them, let them live their life their way, and just don't bother so much about them. Try to ignore them as much as possible. ये आपका ब्रेन है, ये आपकी जिंदगी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको एंट्री देनी है और किसको भाव देना है। My 17th and the biggest life lesson is that whether you think you can or whether you think you can't, you are right. आपके थॉट्स आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ तो आप करके ही रहेंगी, और आपको लगता है कि मैं से ये नहीं हो पाएगा, ये कितना मुश्किल है, तो वो मुश्किल ही लगेगा, बिकॉज आपने ब्रेन से उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। सो योर थॉट प्रोसेस डिटरमाइंस अ लॉट अबाउट यू, सो लर्न टू हैव एन इंट्यूशन दैट कम्स टू यू and accept whatever comes your way. My 18th and the most loved habit that I've eventually adapted to is journaling. उसने मुझे इतना पीस दिया है that I cannot explain. मैं रात को सोने से पहले मेरा दिन कैसा गया ये लिखती हूँ। I write things that I'm thankful to God for. Worst case scenario, मुझे बिल्कुल टाइम ना मिला तो भी before sleeping I write 3 things that really I want to thank God for. और ये करने से my whole माइंडसेट हैज चेंज एंड मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मुझे अवेयरनेस होती है कि मेरा दिन कैसे जा रहा है, मेरा टाइम कहाँ गया, मैं अभी किस चीज पे फोकस कर रही हूँ, एंड ऑल ऑफ इट, एंड आई रियली लव इट, एंड आई हाईली रेकमेंड each one of you to start journaling in whatever way possible. 19th चीज ना, एज अ गर्ल तो मैं दिल से कहना चाहूंगी that your choice of partner will determine a lot in your life. वो कैसे है, वो क्या सोचते हैं, उनका दूसरों के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, या फिर वो कितने सोशल है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिटरमाइन करेंगी कि आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी। तो जब भी एक पार्टनर चूज करो ना, बहुत सोच समझ कर करो। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे स्कूल के या कॉलेज के दिनों में हम कुछ सोचते नहीं है, हमें बस फिजिकल अट्रैक्शन होता है या लाइकिंग होती है किसी से, हमको बस सपने आने लगता है कि मैं इसके साथ ये करूंगी वो करूंगी एंड ऑल ऑफ इट। बट धीरे धीरे व्हेन यू लाइक कम टू द लेट 20s आपको समझ आएगा, या एट दिस पॉइंट मुझे समझ आ रहा है कि जिंदगी इन सब चीजों से या प्यार से या ये सब से नहीं चलती। इट्स नॉट अ बॉलीवुड फिल्म, यू हैव टू लर्न टू बी प्रैक्टिकल, एंड वेन एवर यू चूज योर लाइफ पार्टनर, आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रख के चलने चाहिए, बिकॉज शादी के बाद क्या हो कैसे हो, इट्स अ मेजर रोलर कोस्टर। और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे रोलर कोस्टर्स आए हैं जिसके बारे में मैं फ्यूचर पॉडकास्ट में डेफिनेटली बात करूंगी, सो प्लीज स्टे सब्सक्राइब। द 20th लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्नड इज दैट योर प्रेजेंट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अ गर्ल लाइक मी हु कम्स फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, द वे आई हैव डेवलप्ड, आई वेंट टू हॉस्टल फॉर 5 years, देन आई डिड माई कॉलेज, एंड मी बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, ये चीजें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी लाइफ में, बट लाइफ के हर दायके ने मेरे से जो डिमांड किया वो मैंने किया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट माई प्रेजेंट
will not tell me how my future it is. आप अपने प्रेजेंट को, अपनी जिंदगी को कभी भी बदल सकते हैं. योर थॉट प्रोसेस, आपका एक डिसीजन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी. सो नेवर थिंक कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो गई. आपकी जिंदगी का डे वन आज से शुरू होता है और आप अपनी नई जिंदगी के लिए अभी से काम करना शुरू कीजिए. एवरीथिंग विल चेंज. The next thing that I have learned is that nothing is permanent in life. जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, आई थॉट कि एवरीथिंग इज चेंज नाउ, आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी. अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ बेबी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो मैं अपना काम कब करूंगी, तो मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाएगी. ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मुझे आते थे. बट जब जब वो बड़ा होते गया ना, आई रियलाइज दैट it is upon me. Nobody else can decide for me. And that's not a permanent phase. Everything in your life is a phase, and always remember this too shall pass. Now that he is independent in the sense that he goes to school, he can play on his own, and that phase has come. I realize ऐसा नहीं था, वो सिर्फ कुछ टाइम की बात थी. वो टाइम जो है ना, पे सब चीजें जहाँ थी वैसे पहुंच गई है, and it is fine. The next lesson is coming straight from my heart, and it is that your siblings are your life. हम लोग 3 भाई बहन हैं एंड आई एम द एल्डेस्ट वन. बट मुझे ये समझ आ रहा है ग्रेजुअली कि हर किसी का एक सिबलिंग होना चाहिए. सिबलिंग्स आर अ ब्लेसिंग बिकॉज कभी कभी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो हम अपने फ्रेंड्स या फिर मॉम डैड को नहीं बता सकते. बट विद सिबलिंग्स नो, इट्स लाइक हार्ट टू हार्ट. रिमेम्बर जब हम छोटे थे और मासी का फोन आता था, मम्मी कैसे भाग के जाती थी एंड शी यूज्ड टू हैव सच लॉन्ग कॉल्स कि हमको बोर होता था कि मम्मी क्या है ये. But now that I am a mama and I have my sister and brother, I realize having a conversation with them is so important for my mental peace. I can literally just tell anything to them. And I wish that everybody understands this feeling of having siblings and the importance of it. Because बचपन में कितने भी झगड़े कर लो, आपके यूथ एंड फॉर एवर लाइफ में दे आर द फ्रेंड्स दैट यू रियली वॉन्ट टू यर्न फॉर. The next thing is something that I urge you all to do is to learn to move on. जिंदगी में ना इमोशनल नहीं बट प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना सीखो. आस पास के बारे में थोड़ा नॉलेज रखो. दिल अपने साथ रखो पर दिमाग सबसे ज्यादा हमेशा हमारे साथ होना चाहिए. I cannot emphasize enough on being practical and how much it has helped me in my life. मैं ना कभी कोई डिसीजन आता है ना या कभी कुछ भी होता है तो लिटरली बहुत दिमाग से सोचती हूँ कि दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, विल आई बी एबल टू हैंडल इट, विल आई बी एबल टू डू इट, एंड देन आई गो फॉर इट. सो थोड़ा अपना इमोशनल साइड को ना कभी कभी प्रैक्टिकल साइड के साथ बैलेंस करो एंड देन डिसीजन लो. इट रियली हेल्प्स यू टू मूव ऑन इन लाइफ एंड लर्न टू लेट इट गो. My 24th life lesson is that learn from whoever you can and wherever you can. Learning एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जवान रखेगी और आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट करेगी कि मैं ये नया सीख रही हूँ या मैं वो कुछ कर रही हूँ, और वो आपके अंदर के बच्चे को भी जिंदा रखेगा. सो इट डज नॉट मैटर कि बुक पढ़ के ही नॉलेज आएगा, ऐसा नहीं है. मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि किसी एल्डर से या यंगर से बात करके भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है. My 25th life lesson is that knowing how to drive any vehicle of your choice is a blessing. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना. कुछ भी काम है, चाबी लो और निकलो, and that will solve most of the problems that are going on in your head. So I know a scooty and I really urge and manifest that I learn to drive a car well in my 30s and I can earn enough to get a car for my own self. ये सारा manifestation मैं यूनिवर्स में भेज रही हूँ and I'm sure it will happen one day, और मैं वो vlog करके आप सबके साथ शेयर करूँगी. So the crux is that कोई भी एक व्हीकल चलाना सीखो और इंडिपेंडेंट हो. My 26th life lesson is that you have to have your own bucket list. आप लाइफ में हर थोड़े टाइम पे, लेट्स से ईच क्वार्टर या फिर ईच 6 months, you have to set a bucket list for yourself, some goals for yourself, and then work towards that goal. Recently on Instagram, I have shared my top goals for the last quarter of 2023. If you've not checked out all of that yet, make sure you follow us on Instagram as well at teacherpreneur.in. My point number 27 is that learn to
ट्रैवल और एटलीस्ट गेट आउट ऑफ योर होम। जितना आप इन चार दीवालों में और घर में रहेंगे ना, आपका कोई मेंटल ग्रोथ ही नहीं होगा। उस वजह से ग्रेजुअली लाइफ आपको बोर होने लगेगा, आप लेथार्जिक होने लगोगे, आपको लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। कोविड में, लॉकडाउन में कैसा फील हो रहा था? द वर्स्ट, राइट? माय पॉइंट इज, अगर आप घर से बाहर निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, चार अनजान लोगों से मिलोगे, किसी और से कुछ सीखोगे, किसी से इंटरेक्शन करोगे, इन सारी चीजों में ना आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आप ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर 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 जाते रहोगे। माई 20th लाइफ लेसन इज फॉर ऑल द गर्ल्स। मैं ये कहना चाहूंगी कि शादी के बाद या मदरहुड के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। पर पता है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में था। लाइफ में कुछ फेजेस को एज अ पॉज या एज अ कॉमा लेना सीखो, बट किसी को भी ये राइट मत दो कि वो आपकी लाइफ या आपके सपनों को फुल स्टॉप लगा सके। आपकी जिंदगी आप ही के हाथ में है और वो आप ही के डिसीजन से चले। माई नेक्स्ट लाइफ लेसन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। इट बेसिकली इज दैट नेवर फॉरगेट योर ओन आइडेंटिटी। मैं पहले ख्याति राजा थी, फिर मैं बेसिकली टीचर ख्याति बनी, फिर मैं टीचर ट्रेनर ख्याति बनी। नाउ आई एम डूइंग माई PhD, फिर मेरी शादी हुई तो मैं मिसेस ख्याति बर्छा बन गई, एंड देन आई बिकेम अ मदर। इन सभी चीजों में ना मैं ये सारे रोल्स कर रही हूँ, बट कहीं मैं ख्याति को नहीं भूली हूँ। मेरे जो सपने थे, मुझे जो करना था लाइफ में, स्लो हूं पर मैं अपनी मंजिल पे चल रही हूँ, एंड दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, so that I can manage and maintain my personality. My last life lesson is especially for all the mothers. मैं ये कहना चाहूंगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको बेटा है या बेटी है, अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के अराउंड रिवॉल्व मत कीजिए, क्योंकि कल को जाके बच्चे अपने टाइम पे चले जाएंगे, वो स्कूल है, क्लासेस है, कॉलेज है, उनके अपने फ्रेंड्स बनेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना वो आपके साथ कहीं बाहर जाना भी नहीं चाहेंगे। तो अभी लाइक इन द स्टार्टिंग ईयर्स फ्रॉम 0 to 5 आपको लगेगा मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं एक सबैटिकल ले लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, पैसे बच्चे से इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पैसे बच्चे से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब जब धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होंगे ना, फिर आपके पास टाइम होगा, पर वो सबैटिकल की वजह से आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और अब आपको लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को देखा है कि वो बाउंस बैक कर ही नहीं पाती है। तो नेवर थिंक दैट एनी फेज इन योर लाइफ इज परमानेंट, एंड नेवर फॉरगेट योर ओन आइडेंटिटी एंड योर ओन गोल्स। This is officially the end of my 20s, and I have only three words for my 20s. It is that I'm thankful, grateful, and blessed. And now I'm ready and welcoming my 30s, and I'm up for all the new adventures and success and prosperity that is coming my way. And I wish all that I've manifested comes true. And I keep vlogging until I turn 40 and henceforth. And I promise that I will keep sharing different things that I'm learning on this YouTube channel, and now I will treat it as my own. I started as a hobby, but now I feel like it is a part of my life and I don't wish to discontinue it any further. So make sure you subscribe to our YouTube channel and be a part of our FutureMakers family. I'll be really thankful to each one of you for your wishes and the support that you all have given us throughout this years.